خداوند کا کلام فرماتا ہے میں سنوں گا خداوند کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا۔ آمین آمین۔ اور آج کا کلام جو ہمارے لیے سلامتی کا پیغام ہے وہ ہم خداوند کے بندہ بھائی میتھیو سے سنیں گے، اور آج کا کلام ہم سب مائک سے برکت ہو۔ آئیں کلیسیا اپنے مائک انمیوٹ کریں گے اور خداوند کے خادم کو برادر میتھیو کو ہم ویلکم کریں گے۔ Praise God. Hallelujah. 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 Praise God. اپنے مائک آپ لوگ انمیوٹ رکھیں، سب کہیں گے ہاللویا 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 پریز گاڈ ہاللویا ہاللویا۔ مسیح یسوع کے عظیم جلالی قدوس بابرکت اور رحیم نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میں خداوند کا بہت شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے موقع دیا تاکہ میں آپ کے سامنے خداوند کے حضور خداوند کے مقدس پاک کلام کو پیش کر سکوں۔ یقیناً خداوند اپنے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ خدا کے لوگ خدا سے کتنا ہی دور کیوں نہ بھاگیں، خدا اپنے لوگوں کی بلاہٹ کو ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مقرر کر دیتا ہے۔ اور آج ہم بلاہٹ کے متعلق ہی خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے سیکھیں گے اور پڑھیں گے کہ خدا کا کلام ہمارے لیے کیا سکھاتا ہے، ہمیں کیا سکھاتا ہے، خدا کا کلام ہماری زندگی کو بلاہٹ کے متعلق کیا بتاتا ہے۔ پرانے عہد نامہ کے اندر، نئے عہد نامہ کے اندر خدا نے اپنے لوگوں کو کیسے بلایا، اور خدا آپ کی زندگی میں اور میری زندگی میں کیسی بلاہٹ چاہتا ہے یا کیسی بلاہٹ رکھتا ہے، یا کیا خدا ہمیں بلا چکا ہے یا خدا ہمیں بلانا چاہتا ہے، اس بلاہٹ کے متعلق آج ہم خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ سو آئیے میرے ساتھ نکالیے یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب، اس کی 4 آیت سے لے کر 10 آیت تک ہم خداوند کے مقدس پاک کلام کی تلاوت کریں گے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ انبیاء اکبر میں یہ دوسری کتاب ہے، میجر پروفٹس، پہلا باب اور اس کی 4 آیت سے میں خداوند کے مقدس پاک کلام کی تلاوت کروں گا۔ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ تب میں نے کہا، ہائے خداوند خدا، یہ یرمیہ نبی خدا سے کہتا ہے، تب میں نے کہا، ہائے خداوند خدا، دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں۔ لیکن خداوند نے مجھے فرمایا، یوں نہ کہہ، میں بچہ ہوں، کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا۔ تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا، اور خداوند نے مجھے فرمایا، دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا۔ دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا آپ سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے چند لمحات کے لیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ یقیناً خداوند کا جلال، اس کا ابر، اس کی حضوری یہاں پر موجود ہے۔ خداوند اپنے وعدہ کے مطابق اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں گا۔ ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ ہے کہ خداوند اپنے وعدہ کے مطابق یہاں پر موجود ہے اور اپنے لوگوں کو برکت دینے کو ہے۔ دعا کریں گے آج کے کلام مقدس کے لیے۔ خدا مجھے سنا سری آج کے کلام مقدس میں اپنی رہنمائی دے، اپنے روح القدس کو اجاگر کرے، تاکہ ہم بہتر طریقہ کے ساتھ خدا کے مقدس پاک کلام کو سیکھنے والے ہوں۔
दुआ करूंगा आज के कलाम मुकद्दस के लिए आसमानी बाप, मैं ना बोलूं बल्कि तेरा पाक रूह मुझ में सो के बोले और तेरे रूह की हदायत के मुताबिक मैं तेरे मुकद्दस पाक कलाम को पेश करने वाला हूं। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, यीशु के नाम से, आमीन। सो हमने खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम में यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका पहला बाब और उसकी चौथी आयत से लेकर 10वीं आयत तक का मुतालिया किया, और इसमें हमें बुलाहट के मुतल्लिक पता चलता है कि यिर्मयाह को खुदा कैसे बुलाता है। यिर्मयाह जो इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है खुदावन उठाएगा, और जो यिर्मयाह की किताब है ये दूसरी मेजर प्रॉफिट में आती है। कुल पुराने अहदनामे की किताबें जो है वो 5 शरीयत की किताबें हैं, तारीख की 5 कुतुब हैं, हिकमत की 5 किताबें हैं, उसके बाद अंबिया अकबर हैं और अंबिया असगर हैं। टोटल 39 बुक्स पुराने अहदनामा की है। और जो मेजर प्रॉफिट है जिसके अंदर यिर्मयाह दूसरी बुक में आता है, और यहाँ पर खुदा यिर्मयाह से मुखातिब होता है, और यिर्मयाह से जब खुदा मुखातिब होता है और उसे फरमाता है कि यिर्मयाह कहता है मुझ पर खुदा का कलाम नाजिल हुआ और उसने मुझसे फरमाया कि मैं तुझे कब से जानता था, बतन में खलक किया, मैं तुझे शुरू से, विलादत से पहले से जानता था। मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं कि एक 9 मंथ का एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर बच्चा जो होता है वो माँ के पेट के अंदर रहता है और उसके बाद उसका जन्म होता है। लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे विलादत से पहले, इसका मतलब यह है कि ना तो इसके माँ बाप के जहन में था, ना ख्यालातों में था कि हमारी कोई ऐसी औलाद होगी जिसको खुदा अपना कलाम जिस पर नाजिल करेगा। लेकिन मेरा और आपका खुदा जो है वो अपने लोगों को चुन लेता है, वो उनको पैदा होने से पहले ही चुन लेता है। जैसे यिर्मयाह नबी को कहता है कि मैं तेरी विलादत से पहले ही तुझे मखसूस कर दिया था। कितनी ही अच्छी बात है, लाजवाब बात है कि खुदा ने यिर्मयाह नबी को उसके पैदा होने से पहले ही उसको मखसूस कर दिया और उसको नबी ठहरा दिया। ये यिर्मयाह के लिए एक बहुत ही बड़ी और अच्छी बात होगी कि खुदा ने उसको उसके पैदा होने से पहले मुकर्रर किया था। जब खुदा उससे मुखातिब होता है तब यिर्मयाह खुदा से क्या कहता है, हाय हाय ऐ खुदावंद खुदा, ऐसा ना कर, मैं तो अभी बच्चा हूं। क्या हूं? मैं तो अभी बच्चा हूं। बाज़ औक़ात हमारी जिंदगियों के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर भी कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं। पुराने अहदनामा के अंदर या उन वक्तों के अंदर खुदा खुद मुखातिब होकर बातचीत किया करता था अपने नबियों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ। नए अहदनामा के अंदर भी खुदा मुखातिब होता रहा, रोया में बातें करता रहा, ख्वाबों में बातें करता रहा। आज के दौर में खुदा क्यों बातें नहीं करता? 10 पास्टर्स होंगे जिसमें से एक के साथ खुदा बातें करता होगा, बाकी 9 की खिदमत कहां गई? क्या खुदा ने उनको शुरू से ना चुना था या वो अपनी मर्जी से मखसूस हुए? यहां पर खुदा मखसूस करता है। खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु कहता है, खुदा कहता है तूने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। हम अपनी मर्जी के साथ खुदा की तरफ नहीं आते। कोई अपनी मर्जी से पास्टर नहीं बनता, मुबशर नहीं बनता, एल्डर नहीं बनता, डीकन नहीं बनता, खिदमत गुजार नहीं बनता, प्रस्तार नहीं बनता, खुदा की खिदमत करने वाला नहीं बनता, काहिन नहीं बनता, बिशप, डीकन, एल्डर, एक्स वाई जितनी भी खिदमतें हैं, टीचर, उस्ताद, कुछ अपनी मर्जी से नहीं बनता, खुदा मखसूस करता है। और जो लोग अपनी मर्जी से अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं, कुछ ऊंचा चले जाते हैं, लेकिन मेरा और आपका खुदा उनको वापस नीचे ले आता है, क्योंकि खुदा ने उनको मखसूस नहीं किया होता। वो कुछ हदिया जात देकर अपने आप को मखसूस करवाते हैं ताकि उनका सोसाइटी में नाम हो और मालूम हो कि हम खुदा की खिदमत करते हैं। यिर्मयाह को खुदा ने उसके पैदा होने से पहले ही मखसूस कर दिया था और उसको कहा, जब वो थोड़ा सा बढ़ा तो उसको कहा कि मैंने तुझे पहले से मखसूस किया था। यिर्मयाह कहता है मैं तो अभी बच्चा हूं। हमारे साथ भी ऐसा होता है, खुदा हमें कभी बुलाता है और हम भागते हैं। खुदा खादमों के जरिए कहता है, खुदा अपने बुजुर्गों के जरिए कहता है जो खुदा के साथ अपना वक्त गुजारते हैं।
अगर कोई पास्टर आपको कहता है कि बेटा बेटी आपको खुदा की खिदमत करनी है, आपको गीत गाना है, आपको चर्च में दुआ करनी है, आपको संडे स्कूल में बच्चों को टीच करना है, आपको संडे स्कूल में सिखाना है, आपको मीटिंग प्रेजेंट करनी है, तो आप उस काम से भागे नहीं। ये खुदा का आपके लिए मंसूबा है। खुदा ने आपके लिए एक मंसूबा मुकर्रर किया हुआ है कि वो अपने खादमों के जरिए से अपने लोगों को चुनता है। जब आप रूम में बेदार हो जाएंगे, जब आप रूम में तैयार हो जाएंगे, जब आप गैर जुबानें बोलकर अपनी रूहानी तरक्की में आगे बढ़ेंगे, तो खुदा आपके साथ भी मुखातिब होगा और आपके साथ भी बातचीत करेगा। और यहां पर आगे हम देखते हैं, कहता है कि जब तू बच्चा ही था, जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। तो उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदावन फरमाता है मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं। मेरा और आपका खुदा आपकी मदद करने वाला खुदा है, हम सब की रहनुमाई करने वाला खुदा है, हमारी हिफाजत करता है, हमारी निगहबानी करता है, हमें हर मुश्किलातों से, हर परेशानियों से, हर दुख से, हर परेशानी से, हर अबलीस के बंधनों से बचाता है। क्यों? क्योंकि वो हमें पहले से ही मुकर्रर कर चुका है हमारी खिदमत के लिए, हमारे तोड़े के लिए। हमें अपने तोड़े को पहचानना है, हमें अपनी बुलाहट को देखना है कि हमारी बुलाहट कौन सी खिदमत की तरफ है। किसी की बुलाहट प्रस्तिश की तरफ होती है लेकिन वो कलाम की तरफ भागते हैं, किसी की बुलाहट कलाम की तरफ होती है लेकिन वो प्रस्तिश की तरफ भागते हैं, किसी की बरकत दुआ की तरफ होती है लेकिन वो प्रस्तिश की तरफ या कलाम की तरफ जाते हैं। खुदा ने हर किसी को अलग अलग बरकतें दी हैं, और बरकतें उन्हीं लोगों को देता है जो लोग वफादारी के साथ खुदा के साथ चलते हैं, जो लोग वफादारी के साथ खुदा की ताज़ीम करते हैं, खुदा के नाम को जलाल देते हैं, खुदा के नाम की तमजीद करते हैं। खुदा ने इस बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारे अपने नबियों को चुना जो कुछ ना थे, जिनको आइडिया भी ना था, जिनको मालूम भी ना था कि खुदा ने हमको चुनना है। यर्मिया पैदा होने से पहले ही मखसूस कर दिया गया। अगर हम देखते हैं दाऊद के बारे में कि दाऊद एक बच्चा ही था, दाऊद एक बच्चा ही था। दाऊद के बाप ने सैमुअल के सामने अपने सारे बेटों को जाहिर कर दिया, दिखा दिया। सैमुअल ने कहा कि मुझे अपने और बेटे से मिलवा, तो उसका बाप कहता है कि एक और है जो चरवाहगिरी करता है, जो जंगल में है अपने जानवरों के साथ। क्या कहता है सैमुअल? सैमुअल उठकर उसके पास चला जाता है। अगर पहला सैमुअल 16 बाब और उसकी 13वीं आयत हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि दाऊद ने दाऊद को मसा किया। सैमुअल ने दाऊद को मसा किया। अब दाऊद को ना मालूम था कि मैं मसा क्यों हो रहा हूं, मुझे क्यों मसा किया जा रहा है, लेकिन जिस मकसद के लिए उसको मसा किया जा रहा था वो बादशाहत थी। उसको बादशाह मुकर्रर कर दिया गया। उसको मालूम ना था, उसको मालूम नहीं था कि मुझे किस मकसद के लिए मसा किया जा रहा है। वो एक बच्चा था, अपनी अपनी भेड़ों बकरियों को लेकर जाया करता था। वो एक बच्चा था। एक दफा का जिक्र है कि वो अपने भाइयों को खाना देने के लिए जाता है। उसका बाप उसको कहता है कि जंग लगी है तो अपने भाइयों को खाना देने जा। जब वो खाना देने जाता है तो वहां पर रश लगा होता है, बादशाह भी वहां पर होता है और उसके बहुत सारे सिपाही होते हैं। एक शख्स से डरते हैं, जाति जूलियत से। जब दाऊद उस जगह पर पहुंच जाता है तो वो बातचीत कर रहे होते हैं। दाऊद बार बार आगे को बढ़ता है, उसके भाई उसको धक्का देकर पीछे जाते हैं कि शरारत ना कर, शरारत ना कर। दाऊद आगे बढ़कर बादशाह को कहता है कि मैं उससे लड़ने को जाऊंगा। बादशाह हंसी मजाक करता है, वो अपने भेड़ बकरी की बात बताता है कि शेर जब उसको खा जाता मैं उसके मुंह से निकाल कर ले आता था। बादशाह उसको अपना चोगा देता है, वो इतना वजनी चोगा होता है वो उससे उतार देता है, वो ऐसे ही चला जाता है। और जब वो वहां जाता है खुदा उसको सरफराज करता है। वो जाते जूलियत को मारकर जब वापस आ जाता है तो वहां पर उनके साथ रहने लगता है और कुछ ही सालों में खुदा उसको बादशाह मुकर्रर कर देता है। ये देखिए खुदा का प्लान। खुदा बचपन में चुन लेता है, किसी को पैदा होने से पहले चुन लेता है, किसी को पेट में ही चुन लेता है और किसी को छोटेपन में बचपन ही में चुन लेता है।
یہ خدا کا پلان ہے. آپ کے لیے بھی خدا کا پلان کچھ نہ کچھ ہوگا, میرے لیے بھی خدا کا پلان کچھ نہ کچھ ہے. ہمیں اپنے پلانز کو خدا سے پوچھنا ہے. ہمیں پوچھنا ہے کہ خدا میری زندگی میں آپ کے لیے کیا پلان ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت کروں؟ آپ چاہتے ہیں میں آپ کی پرستش کروں؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے نام کو جلال دوں؟ میں آپ کے کلام کو لوگوں تک پیش کروں؟ میں آپ کی خدمت کروں؟ دیکھیں, خدمتیں بہت ساری ہیں. اگر آپ خدا کے کلام کو پڑھ نہیں سکتے کوئی بات نہیں, ہم دوسری خدمت کو قبول کرنے کی کوشش کریں. بہت ساری خدمتیں ہیں چرچ میں. چرچ کے اندر بہت ساری خدمتیں ہیں. ایلڈر کی ہے, ڈیکن کی ہے, مبشر کی ہے, پاسٹر کی ہے, چرواہے کی ہے, پرستار کی ہے, جو سیکیورٹی ہوتی ہے اس کی خدمتیں ہیں, جو خزانچی ہوتے ہیں اس کی خدمتیں بہت ساری ہیں. لیکن ہم نے اپنی خدمت کو پہچاننا ہے. ہم نے اپنی خدمت کو پہچاننا ہے کہ خدا نے ہمارے لیے کون سی خدمت کو رکھ چھوڑا ہے. بائبل مقدس میں خدا نے جن کو بھی خدمت کے بارے میں پہلے سے چن لیا تھا انہوں نے خدا کے آگے جواب دیا. لیکن داؤد نے ایسا کچھ نہ کیا. داؤد کو مخصوص کر دیا گیا اور داؤد چپ چاپ مخصوص ہو گیا. یرمیا نے کیا کہا؟ میں تو ابھی بچہ ہوں. جب الیشا نے کہا خداون میں تو سب سے چھوٹا ہوں. جب الیشا کے پاس خدا گیا تو الیشا کہتا ہے خدا میں سب سے چھوٹا ہوں. سمسون کے ساتھ خدا نے کلام کیا اور سمسون نے کہا میں تو ابھی چھوٹا ہوں. دیکھیں, خدا جب ہمیں بلاتا ہے ہم بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس چیز سے ہٹتے ہیں کہ ہم اس چیز میں اسٹک نہ ہو جائیں, ہم اس چیز میں پھنس نہ جائیں. لیکن خدا جن کو چن لیتا ہے ان کو گردن سے پکڑ کر بھی لے آتا ہے اور ان سے اپنی خدمت کروا لیتا ہے. ہاللیلویہ, خدا ان کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے. افتح جلادی کے پاس جب خداون گیا تو خداون کو افتح جلادی کہتا ہے خداون میرا تو خاندان ہی چھوٹا ہے اور میں تو فاشا کی اولاد ہوں, میں کیا کروں گا. ہم اپنے آپ کو بہت چھوٹا کر دیتے ہیں. ہم اپنے آپ کو خدا سے دور کر دیتے ہیں. ہم اپنے آپ کو یہ سوچتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں, ہم بہت چھوٹے ہیں. لیکن میرے عزیزوں میں آپ کو بتا دوں, بائبل مقدس کے اندر خدا نے جس کو بھی چنا ہے, کسی نہ کسی غریب کو چنا ہے, یا کسی لاچار کو چنا ہے, یا کسی خدا نے گناہ کرنے والوں کو چنا ہے. ایسے ہی خدا بلاہٹ کرتا ہے. اگر آپ گناہگار ہیں تو آپ چھوڑ دیں, خدا آپ کو چنے گا. خدا آپ کی بلاہٹ ضرور کرے گا. اموس کے ساتھ کلام کرتا ہے خدا. اموس کو کہتا ہے, اموس بہت ہی غریب ہوتا ہے. انجیر بٹور رہا ہوتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم نے ساری فصل کاٹنی نہیں, فصل کو نیچے چھوڑنا تاکہ وہ نیچے گری رہیں اور غریب غلبہ آئیں اور اسے اٹھائیں اور کھائیں. اموس کیا کر رہا ہوتا ہے؟ جو انجیر جو نیچے گرے ہوتے ہیں ان کو بٹور رہا ہوتا ہے. وہ نہایت ہی غریب ہوتا ہے اور انہی کو بٹور کے اس میں سے کچھ کھاتا ہے اور جو اچھے پیس ہوتے ہیں ان کو بیچ دیتا ہے. خدا اموس کے ساتھ ایسے کلام کرتا ہے. خدا آپ کے ساتھ بھی کلام کرتا ہے. خدا میرے ساتھ بھی کلام کرتا ہے. ہمیں اپنی بلاہٹ کو پہچاننا ہے. ہمیں اپنی بلاہٹ کو دیکھنا ہے کہ خدا ہمیں کس طرح سے بلاتا ہے. کیسے خدا ہمیں بلاتا ہے؟ کسی خادم کے وسیلہ سے بلاتا ہے, یا ہمارے ساتھ رویا میں باتیں کرتا ہے, یا ہمارے ساتھ خوابوں میں باتیں کرتا ہے, یا چلتے پھرتے خدا ہمارے ذہن میں باتوں کو ڈالتا ہے کہ ہم خدا کے لیے یہ اچھا کام کریں. ہمیں اپنے آپ کو, اپنی برکت کو آزمانا ہے. جب تک ہم آزمائیں گے نہیں ہم آگے نہیں بڑھیں گے. جب ہم اپنی برکت کو ریسیو کر لیتے ہیں اس کے بعد ایک پروسیجر آتا ہے. وہ پروسیجر بہت ہی سخت ہوتا ہے. یوسف کو خدا نے برکت دی تھی. یوسف کو خدا نے پہلے سے ہی چن لیا تھا. یوسف کے کتنے بھائی تھے؟ 12 بھائی تھے. سب سے چھوٹا تھا, اس سے چھوٹا بنیامین تھا. یوسف کو خدا نے چن لیا. جب یوسف کو خدا نے پہلے سے ہی چن لیا تھا تو یوسف کے بھائی اس سے اختلافات پیدا کرنے لگ گئے. جب اختلافات پیدا کرنے لگ جاتے ہیں, یہ بھی کھانا دینے کے لیے, معلومات کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کی جاتا ہے. اس کے بھائی اس کو وہاں پر بیچ دیتے ہیں. جب اس کے بھائی اس کو, پیدائش کی کتاب 37واں باب اور اس کی 28ویں آیت اگر ہم پڑھتے ہیں تو 20 روپے میں اس کے بھائی اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں. اور جب یہ بک جاتا ہے, جب کال پڑتا ہے, تو وہاں پر یوسف نامی ایک شخص ہوتا ہے جو بادشاہ کے بعد حکمرانی کر رہا ہوتا ہے پورے مصر میں. وہ یوسف ہوتا ہے. خدا نے اس کو
पहले से ही चुन लिया था। प्रोसीजर बहुत बड़ा था, जेल में रहा, जेल में रहता है, बेच दिया जाता है, उनके काम करता होगा, जेल में रहता होगा, उनकी खिदमत करता होगा, लेकिन खुदा ने इसको छोड़ा नहीं। खुदा ने इसके साथ वादा किया था, खुदा ने इसको रोया दिखाई थी कि तेरे भाई तेरे आगे सजदा करेंगे, तेरा बाप तेरे आगे सजदा करेगा। खुदा ने वो वक्त ले आया। खुदा हर काम करने की कुव्वत और ताकत रखता है। मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो सलामती का शहजादा है, वो कुल कायनात को पैदा करने वाला बाप है, वो हय्यल कय्यूम है, वो बचाने और छुड़ाने वाला बाप है, वो फिदिया देने वाला बाप है, वो रहम करने वाला बाप है। और जब खुदा बुलाता है तो हमें मालूम भी नहीं होता कि खुदा हमें कब बुला लेता है। समसून के बारे में अगर हम देखते हैं कि समसून को खुदा ने बुलाया, उसने कहा मैं छोटा हूं। अगर हम सैमुअल की जिंदगी पर गौर करते हैं, वो भी पैदा भी नहीं हुआ था, उसकी माँ ने कह दिया था कि ऐ बाप, ऐ खुदा, तू मुझे बेटा दे, तू मुझे औलाद दे, मैं तेरे नाम कर दूंगी। समसून सैमुअल को खुदा, उसकी माँ एली कहन के हाथ में छोड़ देती है। जब वो उसके साथ रहने लगता है तो खुदा उसको, जब थोड़ा सा बड़ा होता है, खुदा उसको आवाज देता है, सैमुएल सैमुएल सैमुएल। वो भाग के एली काहिन के पास जाता है, फिर आवाज देता है सैमुएल, 3 दफा आवाज देता है, वो एली काहिन के पास जाता है। अब एली काहिन समझ जाता है कि इसको खुदा आवाज देता है। एली काहिन कहता है, अगर तुझे अब आवाज आए तो कहना, खुदावन मैं तेरा बंदा हाजिर है। कभी कभार ऐसा होता है, खुदा हमें आवाज दे रहा होता है, हमें पुकार रहा होता है, हम कभी इस पादरी के पास जाते हैं, कभी उस मुबशर के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं। हम खुदा की आवाज को नहीं सुनते, हम खुदा की आवाज को सुनकर इग्नोर कर देते हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कहा था, आज मैं तुम्हारे साथ हूं, कल मैं तुम्हारे अंदर हूंगा। मेरा और आपका खुदा हमारे अंदर है, हमारे अंदर रहकर काम करता है। रूल कुद्दस के लिए दुआ किया करें, रूल कुद्दस खुदा से मांगे, गैर जुबानें मांगे। जब तक आप गैर जुबानों में दुआ नहीं करेंगे, आपकी रूहानी तरक्की नहीं होगी। रूहानी तरक्की के लिए गैर जुबानों का होना लाजमी है, वरना तो हम एक ऐसे थनथनाता पीतल और झंझनाती जहाज की तरह अपनी खिदमत को सरंजाम दे रहे होंगे और ये कहते रहेंगे कि लाजमी नहीं कि गैर जुबानों का होना जरूर है। मेरे अजीजों, गैर जुबानों के साथ आपकी रूहानी तरक्की होती है, रोजे के साथ आपकी रूहानी तरक्की होती है, दुआ करने के साथ आपकी रूहानी तरक्की होती है। हम आखिरी आयत खुदा उनके मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिए। पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 8वां बाब और उसकी 30वीं आयत, उसमें लिखा है, और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया। अब ये देखिएगा, मेरे लिए और आपके लिए कलाम है। जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया। अगर आपको खुदा बुलाता है तो आपको रास्तबाज भी बनाएगा, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। हालेलुया। मेरा और आपका खुदा जो है, पहले तो हमें बुलाता है, फिर रास्तबाज बनाता है, फिर उसके बाद हमें जलाल भी बख्शता है। अगर आप खुदा के जलाल को हासिल करना चाहते हैं, उसकी बरकत को हासिल करना चाहते हैं, उसकी रहनुमाई अपने साथ साथ लेना चाहते हैं, तो अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में गुजारें, खुदा के कलाम को पढ़ें, उस पर अमल करें। जब तक हम खुदा के कलाम को नहीं पढ़ेंगे, खुदा हमारी अक्ल को, हमारे जहन को, हमारे ख्यालातों को नहीं बदलेगा। हमें चाहिए कि हम अपनी बुलाहट को पहचानें कि खुदा हमें कैसे बुलाता है। क्या हमें खुदा बुला चुका है? क्या हमें खुदा पहले से बुला चुका है और हम खामोश अपनी जगह पर बैठे हुए हैं? हमें अपने बुलाहट को पहचानना है, जैसे यर्मिया को खुदा ने बुलाया, जैसे एलीशा को खुदा ने बुलाया, दाऊद के खुदा ने बुलाया, अपने नबियों को खुदा ने बुलाया, वैसे ही अपनी बुलाहट को पहचाने और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदावंद ये सुनासुरी आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। जय मसीह दी। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah.